Good morning, students. Now I'm taking question number 13 of exercise 9.1 applications of trigonometry. Question number 13 statement is, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships is 30 degree and 45 degree. Obviously है ये छोटे वाला एंगल 30 डिग्री होगा और डिप्रेशन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से लेना है तो LH हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल टू द अर्थ सरफेस बनाया। इस LH से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। अब इसीलिए जो शिप दूर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, जो शिप पास होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा। Now you are given that the ships is exactly behind each other, एक के पीछे एक है, in the same straight line of and on the same side of the lighthouse. Lighthouse के एक ही तरफ, ऐसा भी हो सकता था शिप एक इस तरफ और एक इस तरफ होता, बट यहाँ पे सेम साइड दिया है। Find the distance between the two ships, यानी कि हमें AB निकालना है। So ML is the lighthouse of height 75 meter and A and B are the two ships on the same side of the lighthouse. क्योंकि LH पैरेलल टू MA है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, देयरफॉर एंगल देखिए ये वाला 30 डिग्री है, LHLA, तो ये A भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल MAL is equal to angle ALH is equal to 30 degree. Similarly, angle MBL is equal to angle BLH is equal to 45 degree. Reason हो गया alternate interior angles. Now ये हो गया आपका 45 और ये हो गया 30 डिग्री। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल LMB में टेंजेंट 45 डिग्री is equal to perpendicular LM upon base MB. This applies tangent 45 is 1, LM is 75 meter upon MB, or MB is equal to 75 meters. Similarly, in triangle LMA, यहाँ पे है tangent 30 degree is equal to perpendicular LM upon base MA. Now tangent 30 is 1 upon root 3. This is equal to LM is 75 meters upon MA, or MA is equal to 75 root 3 meters. Now the distance between the ships, distance between the ships is BA, the distance BA, and BA is nothing but MA minus MB. MA आपने निकाला है 75 रूट 3 और MB निकाला है 75 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में आया रूट 3 माइनस 1 मीटर्स, क्योंकि मीटर्स में था सारा डायमेंशन। नाउ 75 इंटू रूट 3 की वैल्यू डाली वो 1.70, ये आपको याद होनी चाहिए। This will give you 0.732 meters. Now you can calculate. इसको आप साइड पे अगर ओरली नहीं कर सकते तो इस तरीके से कर लीजिए।
तो इससे आपको मिला 7845, that is 54.8 meters. This is the distance between the ships. ये कैलकुलेशन आप तभी करें जब आपके पास टाइम हो कैलकुलेशन करने का. If you do not have much time for calculating, then you can leave the solution to this place also. 75 root 3 minus 1. बट कई बार क्वेश्चन में क्योंकि डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाता है डेसिमल्स में निकालिए, तो इस तरह का कैलकुलेशन भी आना चाहिए. Now question number 14 is, a girl is standing at a point on the ground and she spots a balloon. A पॉइंट पे उसने एक बलून देखा और वो बलून हॉरिजॉन्टली हवा की डायरेक्शन में जा रहा है, and the balloon is at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of the balloon, angle of elevation from the eye of the girl at instant is 60 degree. यहाँ से उसने 60 डिग्री देखा. यानी कि अगर HQ ग्राउंड लेवल है तो GL हमने एक लाइन पैरेलल बनानी है, हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, और इस पॉइंट G से, क्योंकि गर्ल की हाइट GH है, तो इस पॉइंट G से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री. अब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. जैसे जैसे बलून दूर जाता जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा. तो इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री व्हेन द बलून रीचेस द पॉइंट P. We have to find the distance traveled by the balloon during this interval. अब क्योंकि हाइट सेम ही रखना है तो जितना AB है उतना ही PQ होगा, 88.2 meters. And we have drawn this GL parallel to the earth surface. Therefore, GHQL becomes a rectangle. And since GH is 1.2 meters, तो LQ भी आपका 1.2 meters हो गया. अब इससे हमें क्या मिला, ये PL हाइट, PQ में से LQ माइनस किया तो we get the height PL and that is 87 meters. Now in यहाँ पर हमें इसको L दे दिया ना, यहाँ M दे देते हैं, तो जितना AM होगा उतना ही PL होगा and it will be 87 meters. Now in triangle AMG, ये छोटे वाला ट्राइंगल, tangent 60 degree is equal to AM upon GM. This implies tangent 60 होता है √3, AM 87 meters, GM हमें पता नहीं, और GM is equal to 87 upon √3 meters. √3 नीचे आ गया, GM ऊपर चला गया. अब देखिए जितना GM है उतना ही HB होगा. Therefore, HB is equal to GM is equal to 87 upon √3 meters. इसको ले लो इक्वेशन 1. अब ट्राइंगल दूसरा ले लेते हैं, PGL. यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री is equal to perpendicular PL upon base GL. टेंजेंट 30 होता है 1 upon √3. PL is again 87 meters. GL हमें पता नहीं, अब ये GL इधर गया, 87 √3 meters. Now again जितना GL है उतना ही HQ है. HQ is equal to GL is equal to 87 √3 meters. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. From equation 1 and 2, distance
covered by balloon is equal to, देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितना था, जितना आपका AP था, ये AP, एंड AP इज नथिंग बट BQ, AP और BQ क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमने पैरेलल खींची हुई लाइंस और हाइट भी बलून की सेम है, तो AP and this is equal to BQ. And what is BQ? BQ is nothing but HQ minus HB. HQ है आपका 87√3 माइनस HB आपने यहाँ से निकाला था इक्वेशन 1 से, 87/√3 मीटर्स। 87 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस 1/√3 मीटर्स। 87 3 माइनस 1/√3, एलसीएम ले गया √3, तो √3 into √3 3। This will give you 87 into 2/√3 meters। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। This gives you 87 into 2√3/3 meters। अब 3 से 87 कटता है, देखिए कैसे कटेगा, 3 2 6, 27, 3 9 27 into 2√3 meters, और 29 into 2 कितना होता है 58, 29 58√3 मीटर्स। बाद में आपको डेसिमल्स में अगर निकालना हो तो √3 की वैल्यू ऑफ 1.732 डाल के आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून निकाल सकते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।